Hi friends, good morning and warm welcome again our bookkeeping and accountancy's online lecture series. Today I explain you our bookkeeping and accountancy chapter 7, that means depreciation. Last chapters already I have given PDF related to our BRS, means bank reconciliation statements notes. So that chapter already I told you that chapter's question problem is the objective and all type question, means optional question. But in this chapter, that means depreciation problem, depreciation chapter's question is the compulsory question. Remember, in our annual exam, total 7 question. 6th and 7th question is the compulsory question for 12 marks. So that means question number 6 for depreciation and question number 7 is the final account. Okay. So today I explain you in these chapters how to solve the depreciation problem. I request you watch each and every slide. Because of each and every slide, I explain you how to solve the problem, in which point is important. Working note, how to calculate the depreciation. Each and every question, each and every slide, I explain you important, related to this chapter. So you watch each and every slide. Okay. So again, warm welcome. Myself, Mrs. Sheetal Kabiraj Jadhav, teacher of BYK College. So, friend, two types of the assets, that means tangible and intangible assets. Okay. So we can see easily, we can touch, that's the tangible asset, but we cannot see, we cannot touch, that asset is called the intangible. Okay. So such assets, that means tangible and intangible. Okay. So in daily life you use many assets which could be tangible and intangible. Okay. So these fixed assets, so that means for example building, furniture, machinery, computer, vehicle, all is related the assets. Which assets? Fixed assets. Okay. So in these assets, when we use, so useful life of each and every assets, this process of spreading of the cost, so fixed asset amount, fixed assets cost is decreased each and every year, decline. Okay, so this term is called the depreciation. Means depreciation का meaning क्या पता चला? Depreciation is, this word is derived from the Latin word, that means called the deprecium, which means reduction. Reduction means reduce. Okay, so the value of these assets decrease every year. यानी कि आपको पता है कि आप व्हीकल यूज करते हैं, 2 व्हीलर या 4 व्हीलर, ईच एंड एवरी ईयर उसका जो प्राइस है वो इंक्रीज हो जाएगा या डिक्रीज हो जाएगा? ऑफकोर्सली डिक्रीज हो जाएगा, बिकॉज ऑफ वी कैन यूज करने की वजह क्या हो जाता है, वो एसेट्स का वैल्यूएशन डिक्रीज हो जाता है ईच एंड एवरी ईयर. सो रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ड्यू टू इट्स वेयर एंड टेयर, so our actual use is called the depreciation. So depreciation means क्या पता चला? हम depreciation किसका निकालते हैं? मेन इंपॉर्टेंट रिमेंबर, फिक्स एसेट्स. फिक्स एसेट्स उसमें से मैंने बताया कि फॉर एग्जांपल व्हीकल भी हो सकता है, 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, बिल्डिंग हो सकता है, फर्नीचर, मशीनरी, कंप्यूटर. ओके, so depreciation means क्या है? What's the definition of the depreciation? May be asked in the question for 1 marks. What is depreciation? So depreciation is the gradually decrease in the value of an asset from any cause.
Depreciation may be defined as a gradually deterioration in the value due to use. Depreciation may be defined as a permanent and continued diminution in the quality, quantity or the value of an asset. So that means depreciation, it's a continuous, gradual and permanent reduction in the value of asset is called the depreciation. यानी कि आपको depreciation क्या पता चला? Depreciation means घसारा. घसारा means उसका जो value है वो हमेशा क्या हो जाता है? Every year decrease हो जाता है, decline हो जाता है. समझ में आया? Okay. So this is the need या importance of depreciation. Depreciation क्यों निकालना चाहिए? क्यों उसका essential है? क्या important है? Depreciation is charged to profit and loss account as it is an element of a cost. In each and every year when we prepare profit and loss account, so in that time depreciation अगर हम charge करते हैं तो अपने को उसका valuation समझ में आ जाता है, उसका profit या loss समझ में आ जाता है. So it is also essential to arrive at true value of the asset. Also the net profit or net loss during a particular accounting period. Next important thing is if depreciation is not provided. अगर हमने depreciation provide नहीं किया है, so and deducted from the value of assets, तो assets will be overvalued. अगर हमने उसका depreciation नहीं निकाला तो क्या हो जाएगा? Assets का valuation overvalued हो जाएगा and we cannot find out the true and fair financial position of the business. So that means each and every year depreciation calculation करना important है. It enables the business to compute and pay correct amount of tax to the government. ये भी benefit हो जाता है. Depreciation must be calculated and equivalent funds should be provided for every year so that at the end of its life the assets may be easily replaced. समझ में आ गया? Okay. The next important point is two methods. You know friend, when we calculate the depreciation, when we solve the problem, so in that time remember two methods. दो methods में से आपको एक method so exam के लिए आने वाला है. So first you see in which method you are given. So there are different methods of the depreciation, but remember only first two methods have been prescribed in the syllabus for 11th class commerce student. Remember only two methods, that means only fixed installment method and second one diminishing or reducing balancing method. So first method is the fixed installment. उसको दूसरा नाम है straight line method or original cost method. Remember student, when you solve the problem, first you read carefully in which method you have given fixed installment या फिर उसके नाम जगह पर स्ट्रेट लाइन दिया है या फिर ओरिजिनल कॉस्ट मेथड दिया है, ये आपको देखना है. अगर तीनों में से एक जो दिया है तो उसको क्या बोलेंगे? फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, स्ट्रेट लाइन और ओरिजिनल कॉस्ट मेथड. हाउ टू कैलकुलेट, देन आफ्टर आई टेल यू in the next slide. Second method is the diminishing, means reducing balance or return down value method. So that means these both the method is important. Okay. How to calculate? Yeah, what's the meaning of the first method? Yeah, second method. First method, fixed installment or straight line or original cost method. So this method depreciation is charged at a specific percentage on the original cost. Remember student. So अगर आपको fixed installment या straight line या original cost method ऐसा दिया है problem में, तो जो percentage दिया है depreciation का वो किस पर निकालना है? हमेशा each and every year on the original cost. Remember. Or assets every year. So as to reduce the asset account
to nil or its scrap value at the end of the estimated life of the asset. Okay. So this ascertain the annual charge under this method. All that is necessary is to divide the original value of the assets minus its residual value, if any. आपको अगर दिया है तो उसको माइनस करके जो प्राइस आएगा, so by the number of years of its estimated life. आपको कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करना है, इससे हाउ टू कैलकुलेट आपको नेक्स्ट स्लाइड में मैं बताऊंगी. लेकिन पहले इम्पोर्टेंट क्या मैंने बताया कि अगर आपको फर्स्ट मेथड दिया है प्रॉब्लम में, तो आपको कैसे परसेंटेज निकालना है ऑन दी ओरिजिनल कॉस्ट, ये याद रखो. और सेकेंड मेथड में हमेशा याद रखना, दैट इज सेकेंड मेथड मीन्स विच वन, डिमिनिशिंग, या फिर आपको उसकी जगह रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड दिया, या फिर रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड दिया जाएगा. देखो तीनों में से कोई भी नाम दिया है तो याद रखना है. ठीक है. लेकिन यहाँ पर ये जो मेथड दिया है इसमें आपको डिप्रिसिएशन, व्हेन यू कैलकुलेट द डिप्रिसिएशन, रिमेंबर परसेंटेज ईच ईयर ऑन द बैलेंसेस. फर्स्ट मेथड में हमने जो बैलेंसेस के ऊपर नहीं निकालना है, वो ओरिजिनल कॉस्ट पर निकालना है. और डिमिनिशिंग मेथड में अपने को क्या करना है, जो परसेंटेज दिया है वो ईच एंड एवरी ईयर जो बैलेंस आएगा एसेट्स का, जो वैल्यूएशन आएगा उसके ऊपर परसेंटेज निकालना है डिप्रिसिएशन का. कैसे करना है मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ. ठीक है. सो दिस इज द फॉर्मूला हाउ टू कैलकुलेट द डिप्रिसिएशन. डिप्रिसिएशन कैसे निकालना है, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द एसेट, दैट मीन्स ईयर. आपको जितना ईयर दिया है उसको डिवाइड करना है. ओके. अभी ये जो ओरिजिनल कॉस्ट है वो कैसे निकालना है. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर गिवन इन द प्रॉब्लम परचेसिंग प्राइस ऑफ एन एसेट, आल्सो इसमें क्या क्या ऐड करना है, अगर आपको उसके चार्जेस दिया है, इंसिडेंशियल चार्जेस दिया है, तो ऐड करके उसका ओरिजिनल कॉस्ट तैयार हो जाता है. और उसमें से स्क्रैप वैल्यू माइनस करके जो एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ ईयर दिया है उससे डिवाइड करना है. ओके. ये हो गया डिप्रिसिएशन का फर्स्ट फॉर्मूला. सेकेंड वन, आल्सो वी डिप्रिसिएट कॉस्ट ऑफ द एसेट, जो कॉस्ट दिया है उसको रेट ऑफ डिप्रिसिएशन इनटू 100 से डिवाइड करना है. ये सिंपल डिप्रिसिएशन का मेथड. लेकिन अगर आपको ये पूरा दिया है प्रॉब्लम में, उसका परचेसिंग प्राइस दिया है, इनिशियल चार्जेस दिया है, वो फिर उसके हिसाब से ये डिप्रिसिएशन निकालना है. Okay, so that means both the formulas is important how to calculate the depreciation. Yes, all of you understood? Is it clear now? Depreciation कैसे काउंट करना है, कैलकुलेट करना है, समझ में आ रहा है. जो फॉर्मूलाज मैंने बताया है. ओके. आपको जब नेक्स्ट में प्रॉब्लम बताऊंगी उसमें से आपको जल्दी समझ में आ जाएगा. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, मशीनरी का जो कॉस्टिंग है, मशीन कॉस्टिंग ₹15,000 is purchased and installation charges of ₹3,000. यहाँ पर मशीन का कॉस्ट दिया है और उसको इंस्टॉलेशन चार्जेस दिया है 3,000 is paid. Estimated life of the asset is 10 years and the scrap value is estimated ₹2,000. At the end of its life, the amount of depreciation would be. अभी अपने को depreciation निकालना है तो कौन सा फर्स्ट फॉर्मूला we can use? Original cost minus scrap value divided by estimated life of the assets, that means years. Okay. Depreciation is equal to first one, original cost कैसे निकालना है मैंने बताया ऑलरेडी. मशीन का जो कॉस्टिंग दिया है 15,000, उसमें से इंस्टॉलेशन चार्जेस में हमने क्या किया है, ऐड किया है, प्लस एंड उसमें से 2,000 स्क्रैप वैल्यू को माइनस किया है. And divided by 10 means यहाँ पर दिया है estimated life of the asset is 10 years. जो जितना ईयर उसका दिया है estimated life, ये 10 years हमने क्या किया, उसको डिवाइड किया है. So 15,000 plus 3 minus 2,000 कितना आया, 16,000 divided by 10. So that means depreciation is the 1,600 per annum per year. समझ में आया? Okay. Depreciation is also when the rate of depreciation is given. So this is also the formula.
Depreciation is equal to cost of the assets multiplied by rate of depreciation divided by 100. Here it is, I have given the note. At the time of calculation of depreciation amount, the period for which the asset is used in the business during the current accounting year should be considered. Okay? इतना याद रखो. अभी देखो, फॉर एग्जाम्पल आपको एक प्रॉब्लम दिया है, जस्ट एक सिंपल प्रॉब्लम है. आपको एसेट का वैल्यूएशन दिया है. आपको दो मेथड में से डिप्रिसिएशन फाइंड आउट करना है. आपको फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड में कैसे करना है एंड रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड दिया है तो कैसे करना है. ओके, रिटर्न डाउन मींस रिड्यूसिंग वैल्यू मेथड. तो अभी ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट दिया है 80,000. डिप्रिसिएशन चार्ज दिया है 10% पर एनम. फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, द अमाउंट डिप्रिसिएशन विल बी कंप्यूटेड एज फॉलोज. अगर आपको फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड निकालना है तो फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड के हिसाब से डिप्रिसिएशन हम फर्स्ट ईयर का निकालते हैं. ओके, जो करंट ईयर दिया है पहले मैंने अभी बताया वो पहले लेना है, फिर नेक्स्ट ईयर एंड नेक्स्ट ईयर. व्हेन यू सॉल्व द प्रॉब्लम, रिमेंबर स्टूडेंट, सो कितने ईयर दिया है, फर्स्ट ईयर पहले काउंट करो, सेकेंड एंड थर्ड ईयर, ये तीनों आपको कैसे करना है, उसका वर्किंग नोट कैसे करना है मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगी. लेकिन पहले ईयर जो दिया है फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर. फर्स्ट ईयर में फॉर एग्जांपल मैं आपको एक ईयर का बताती हूँ. 80,000 उसका वैल्यूएशन दिया है ओरिजिनल कॉस्ट, उसके ऊपर अपने को 10% निकालना है. तो 10% के हिसाब से कितना हुआ, 8,000 डेप्रिसिएशन हुआ. ये हो गया फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड अगर आपको दिया है. अगर आपको रिटन डाउन वैल्यू मेथड दिया है तो क्या करना है कि जो वैल्यूएशन दिया है 80,000 उसका प्राइस हो गया, उसमें से 8,000 हमने डेप्रिसिएशन निकाला तो 72,000 उसका वैल्यूएशन आया है. ओके, सो नेक्स्ट ईयर जब हम रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड निकालेंगे उसमें से डेप्रिसिएशन, तो ये जो प्राइस दिया है 72,000 का जो वैल्यूएशन निकाला है फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पर, तो नेक्स्ट ईयर जब हम डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो यही जो दिया है तो 72,000 के ऊपर फिर जो माइनस करके डेप्रिसिएशन लेस करना है. अगर उन्होंने फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड दिया है तो सेम जो प्राइस दिया है 80,000 जो ओरिजिनल कॉस्ट है उसके ऊपर ही निकालना है. इतना याद रखो. समझ में आ रहा है? यानी कि रिटर्न वैल्यू मेथड में क्या करना है, जो बैलेंस आएगा उसके ऊपर हम डेप्रिसिएशन उसमें से माइनस करेंगे. लेकिन फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड है जो ओरिजिनल कॉस्ट है उसमें से ही हम माइनस करेंगे. नेक्स्ट जब मैं आपको प्रॉब्लम बताऊंगी तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा. तो यानी कि आपको ये दोनों बातें याद रखनी है कि फिक्स इंस्टॉलमेंट में ओरिजिनल कॉस्ट पर डेप्रिसिएशन निकाला है और जो देन आफ्टर हमने बताया है कि रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में परसेंटेज उसके हिसाब से हम निकालेंगे. ठीक है, आई बात समझ में? Yeah. अगर आपको प्रॉब्लम में दिया है कि पास द जर्नल एंट्री, तो दिस इज द जर्नल एंट्रीज अंडर द बोथ द मेथड्स. ओके, फर्स्ट वन, व्हेन परचेज द एसेट. ओके, सो इन दैट टाइम फर्स्ट जर्नल एंट्री इज द एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट. Narration is important when you write the journal entry being assets purchased for cash. Okay. Second one, if that asset purchase on credit, कैसे asset account debit to write down that suppliers या parties account naming here. Okay. And narration जब आप लिखेंगे तो यहाँ पर ही लिखना जरूरी है on credit. Remember. Okay. ये यहाँ पर पहला एंट्री मैंने कैश का बताया, सेकेंड वन क्रेडिट का बताया है. समझ में आ रहा है? ये एंट्री हो गया कैश अगर दिया है, अगर ये क्रेडिट का एंट्री. ओके, देन अगर कोई इंस्टॉलेशन चार्जेस, इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस अगर उसमें दिया है तो एंट्री इज एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट. क्योंकि हमने कैश पे किया है इसलिए credit what goes out. Here it is, we follow the rules, real, personal and nominal. Asset account debit to cash
या बैंक अकाउंट। बीइंग द पेमेंट ऑफ इंसिडेंशियल चार्जेस, इंस्टॉलेशन चार्जेस जो भी आपको दिया है वो अमाउंट को यहाँ पर लिखना है। तो यानी कि थर्ड एंट्री को कौन सी हो गई, इंस्टॉलेशन चार्जेस की। ठीक है, समझ में आ गए तीनों एंट्रीज। द नेक्स्ट वन इज द डेप्रिसिएशन, आपको जब चार्ज करेंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। यहाँ पर आपको याद क्या रखना है मैं आपको बताती हूँ। एसेट्स अकाउंट में जो एसेट्स आपको प्रॉब्लम में दिया है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मशीनरी दिया है, फर्नीचर दिया है, कंप्यूटर दिया है, प्लांट दिया है, बिल्डिंग दिया है, क्या दिया है, फर्स्ट यू रीड केयरफुली। ओके, हमेशा अपने को याद आता है, मींस प्रैक्टिस में मशीनरी अकाउंट या वही लिखते हैं, लेकिन फर्नीचर भी दिया जा सकता है, कंप्यूटर दिया जा सकता है, प्लांट भी, बिल्डिंग, कोई भी एसेट दिया है, सो राइट डाउन हियर टू एसेट अकाउंट। ओके, दैट एसेट्स का नाम लिखना है, इतना याद रखो, जो भी whatever you are given there. Okay, so then after these balances of depreciation transfer to profit and loss account. So profit and loss account debit to depreciation account. So when we prepare the depreciation account, remember this journal entry also. And आपको अगर 2 years का या 3 years का दिया है, so next year also the second year onwards depreciation account debit to asset account, depreciation charge, and also that depreciation transfer to the profit and loss account. Okay, समझ में आया? So now see here, अभी प्रॉब्लम में एक एक मैं पॉइंट्स आपको बताऊंगी। See here, listen carefully. दिस इज द अनसॉल्व प्रॉब्लम। अवर बुक टेक्स्ट बुक में जो अनसॉल्व प्रॉब्लम है वो मैंने लिया है। शुभांगी ट्रेडिंग कंपनी ऑफ डोंबिवली परचेस्ड मशीनरी। देखो अभी यहाँ एसेट का नाम क्या दिया है, मशीनरी। सी हियर, व्हेन you solve the problem of depreciation, first you remember 3 points. First, read carefully. Second one, in which assets you are given, you read. Okay. Second one, important thing, in which year you are given. For example, here it is given the 1st January 2016. So starting year is the 16. आपको 3 years का प्रिपेयर करना रहता है मशीनरी अकाउंट में। सो स्टार्टिंग 16, 17, ये याद रखो, ईयर जब काउंट करेंगे 16, 17, 17, 18 एंड 16, 17, 17, 18 एंड 17, 18, 18, 19। ओके, यानी कि 31 मार्च लास्ट अपना 18 आना चाहिए। देखो सबसे पहले मैंने बताया मशीनरी अकाउंट अपने को ओपन करना है, मशीनरी का कॉस्टिंग दिया है। रीड करते समय एक एक पॉइंट को याद रखो, समझ लो पहले। फर्स्ट यू अंडरस्टूड ईच एंड एवरी लाइन। फॉर एग्जाम हियर इट इज गिवन मशीनरी फॉर रुपीज 86,000 ऑन 4 जनवरी 2016, यानी कि फर्स्ट मशीनरी कब कौन सा मशीनरी परचेज किया ये देखना है। फर्स्ट मशीनरी 4 जनवरी 2016 को क्या किया, परचेज किया है। उसके साथ इमीडिएटली स्पेंड 4,000, उसको जो फिक्सेशन चार्जेस है वो लगाया है। लेकिन इन दैट टाइम आल्सो ऑन 1 अक्टूबर 2016 को सेकेंड मशीनरी परचेज किया है। दैट मीन्स एडिशनल मशीनरी आल्सो परचेस्ड। कब परचेज किया है, फर्स्ट एंड सेकेंड सेम ईयर को ही है। एक है 1 जनवरी, सेकेंड है 1 अक्टूबर। ये अगर आप ठीक से पढ़ेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इजी हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है, ये हो गया फर्स्ट मशीनरी 86,000, सेकेंड मशीनरी परचेज किया है फॉर रुपीज 40,000 का। सेकेंड वन, ऑन 1 अक्टूबर 2017 the machinery purchased on 4 January 2016 became obsolete and was sold for rupees 70,000. See here, उन्होंने क्या दिया है कि जो 1 जनवरी 2016 को
जो मशीनरी परचेज किया था वो 1 अक्टूबर 2017 को क्या किया है, सोल्ड किया है। ये एक एक मैंने क्यों बोला आपको कि रीड केयरफुली, आप उसका मीनिंग समझ में आ जाता है। अगर आपका इसको मीनिंग समझ में आया कि कौन सा मशीनरी कब परचेज किया, कब सोल्ड किया, ये अगर पता चला तो वी कैन इजीली कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन। तो 70,000 को उसको सोल्ड किया है, but in that time 1st July 2017 a new machine was also the purchase for rupees 45,000। देखो यानी कि ये थर्ड मशीनरी है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, यहाँ पर 3 मशीनरी का अपने को डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। समझ में आया? नेक्स्ट वन दिया है डेप्रिसिएशन वॉज प्रोवाइडेड एन्युअली ऑन 31 मार्च, यानी कि डेप्रिसिएशन निकालते समय क्या याद रखना है, 31 मार्च इज द ईयर एंडिंग, रिमेंबर। एंड रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दिया है, ये भी देखना इंपॉर्टेंट है, 12% पर annum on fixed installment method. This is the important point. When you read problem, remember students, these also the important point and these also the important in which method you have given. Here it is given the fixed installment method. Prepare machinery account for 3 years. कितना years को निकालना है अपने को, 3 years. And also see here, आपको सिर्फ मशीनरी अकाउंट ओपन नहीं करना है, यहाँ पर उन्होंने दिया है 5 जर्नल एंट्रीज ऑल्सो फॉर थर्ड ईयर, ओनली थर्ड ईयर मीन 17-18 को अपने को क्या करना है, जर्नल एंट्री उसका सिर्फ राइट डाउन करना है। प्रॉब्लम समझ में आया? ठीक है, now see here, this is the solution. When we start the solution, that means when we solve the problem, remember student, first you write here in the books of, जो भी ट्रेडर का नाम दिया है, सो या कंपनी का नाम दिया है, फर्स्ट यू राइट डाउन इन द बुक्स ऑफ शुभांगी ट्रेडिंग कंपनी जोंबौली, debit and credit side, both are the also the important. In here it is write down center that asset name, if you are given the machinery account, furniture account, computer account, whatever you are given, first you write here in this center point. So in this problem you are given the machinery account, so you write here, okay, date, particulars, JF, general folio number, amount rupees. In this debit side, same here it is also the in the credit side, date, particulars, JF, amount rupees. यानी कि पेज को पार्टीशन करके उसके 2 पार्ट्स बनाना है, one side is the debit side, one side is the credit side. Okay, so first you start, here it is, I have given the, this is the date column, first you write down the year. January 1st हमने क्या किया है, फर्स्ट मशीनरी परचेज किया है हमने, मीन्स दैट ट्रेडिंग कंपनी ने। ये याद रखना है कि फर्स्ट एंट्री कब करनी है, आपको प्रॉब्लम में मैंने ऑलरेडी बताया था कि जनवरी 1 में मशीनरी परचेज किया है, तो दैट मीन्स मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, हमने पे किया है अमाउंट, सो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यहाँ पर रूल हम अगर फॉलो करेंगे तो मशीनरी अकाउंट के डेबिट में क्या जाएगा, टू बैंक अकाउंट। ये फर्स्ट मशीनरी परचेस किया था 86,000 को, एंड 4,000 क्या किया है, उसमें इंस्टॉलेशन चार्जेस लगा है, तो यानी कि एक्चुअली मशीनरी का प्राइस कितना हुआ, 90,000। सिया समझ में आया? ये कैसे निकाला, 86,000 प्लस 4,000। आप बोलेंगे मशीनरी का प्राइस 86 है तो 90 क्यों लिखा, क्योंकि 4,000 इंस्टॉलेशन चार्जेस उन्होंने लगाया है, तो प्राइस ऑटोमेटिकली वो ऐड करके लगाना है, ठीक है। सो 90,000 हमने यहाँ लिखा। अभी अपने को इसका डेप्रिसिएशन निकालना है। 2016 31 मार्च
जनवरी में स्टार्ट हुआ, 31 मार्च को ईयर एंडिंग है, तो बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट यहाँ टू एंड हियर इट इज राइट डाउन द बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट। अभी देखो ये जो डिप्रिसिएशन निकालना है, यहाँ पर मैंने 2700 लिखा है। देखो हाउ टू कैलकुलेट द डिप्रिसिएशन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हियर इट इज, आई गिव द स्लाइड। Calculation of depreciation, machinery first, machinery second and machinery third. For example, our machinery's price is 90,000. First you calculate 12 months and here it is the 12 months. सबसे पहले आपको 12 months का depreciation find out करके रखना है। यहाँ पर 90,000 का मैंने निकाला है 12 months का फर्स्ट वन, तो वो हो गया 10,800। ये मैं जस्ट फर्स्ट मशीनरी का बता रही हूँ। अभी मैंने बताया कि 2700, तो ये 2700 जो है, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये 2700 मैंने कहाँ से लिया, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पर मैंने बताया कि 2700 डेप्रिसिएशन काउंट किया है, लेकिन ये 2700 हमने ओनली फॉर 3 मंथ्स का लिया है। 3 मंथ्स का क्यों? यहाँ पर हमने मशीनरी का परचेस की थी, ये याद रखना है, जनवरी में। डिप्रिसिएशन कब निकालते हैं? 31 मार्च को। तो जनवरी फर्स्ट है इसलिए पूरा मंथ आएगा, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। कितने मंथ्स हो गए? 3 मंथ्स। ओके, तो 3 मंथ्स का डिप्रिसिएशन का अपने को परसेंटेज दिया है 12%। सो 90,000 मल्टीप्लाइड बाय 12% मीन्स 100 से हमको डिवाइड करना है। 3 मंथ्स है इसलिए 3 इंटू 12 मंथ से डिवाइड किया तो कितना हुआ? 2700। ये हो गया फर्स्ट मशीनरी का डेप्रिसिएशन। सेम हियर 6 मंथ का मैंने निकाला है। देखो यहाँ पर ये दोनों नेक्स्ट जब प्रॉब्लम में बताऊंगी तो ये 6 मंथ का मैंने निकाल के रखा है। सेम प्रोसेस है, 12% है इसलिए 100 से डिवाइड किया, 6 इंटू 12 तो 2400 आया है। ये हो गया फर्स्ट मशीनरी का। अभी ये सेकंड ईयर का कैलकुलेशन निकालना है। अब पहले ये देखो 2700 कैसा है, समझ में आया? फॉर 3 मंथ्स 90,000 में से 2700 माइनस करना है, जो बैलेंस आएगा वो मार्च 31 को लिख के कितना आया? 87,300। तो यानी कि ये हो गया अपना 2016 का कंप्लीट। इसको 90,000 ये टोटल किया तो इसको क्लोज किया, और सेम बैलेंस जो 80,300 जो आया था वो हमने यहाँ पर बैलेंस ब्रॉट डाउन किया है। देखो 31 मार्च का जो बैलेंस है 1 अप्रैल को क्या करना है? ब्रॉट डाउन करना है। नेक्स्ट ईयर जो बैलेंस जो भी आएगा ईच एंड एवरी ईयर, ठीक है, वो लिखा 87,300। सेम दिस ईयर अगेन प्रॉब्लम में दिया था, देखो 1 October 2016 additional machinery costing ₹40,000 was purchased। तो यानी कि यहाँ पर 16,000 को ही हमने दूसरा मशीनरी परचेस किया है अक्टूबर 1। दिस इज द सेकेंड मशीनरी। सेम जर्नल एंट्री, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 40,000, ठीक है। अभी डेप्रिसिएशन निकालते समय क्या याद रखना है? देखो फर्स्ट मशीनरी का भी 1 साल पूरा हुआ है, तो 31 मार्च को 10,800 पूरा साल का डेप्रिसिएशन आएगा, लेकिन मशीनरी 2 का जो है उसका डेप्रिसिएशन पूरा साल का आएगा क्या? नहीं। कैसे काउंट करना है? देखो अक्टूबर, देखो यहाँ पर दिया है 40,000 का 1 अक्टूबर टू 31 मार्च 2017। अक्टूबर 1 पूरा लेना है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने हो गए? 6 मंथ। ये मंथ आप अगर ठीक से काउंट करेंगे तो आपको डेप्रिसिएशन काउंटिंग में इजी हो जाएगा। तो यानी कि सेकेंड डेप्रिसिएशन
सेकेंड मशीनरी का डिप्रिसिएशन कितना आया 2400 CR। समझ में आया? ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर हम प्रॉब्लम में लिखा 2400, ये 10800 फर्स्ट मशीनरी का डिप्रिसिएशन, सेकेंड मशीनरी का 2400, सो टोटल डिप्रिसिएशन हो गया 13200। यस, समझ में आ रहा है? यानी कि सेकेंड ईयर में फर्स्ट मशीनरी का फुल ईयर, पूरा होल ईयर, क्योंकि पूरा जनवरी टू मार्च 31 मार्च अभी क्या हुआ है, पूरा साल हो गया 17 तक। फिर सेकेंड मशीनरी का अक्टूबर टू मार्च 31 मार्च 6 मंथ का हमने डिप्रिसिएशन निकाला। जो टोटल अमाउंट है 1,27,300 में से ये जो डिप्रिसिएशन माइनस करके बैलेंस आ गया 1,14,100। ये बैलेंस हमने फिर से यहाँ पर ट्रांसफर किया। सी है कौन सा बैलेंस, ये जो है वो हमने क्या किया, नेक्स्ट ईयर ट्रांसफर किया। मींस 2016 जनवरी में स्टार्ट किया था, अभी हम क्या करें 2017 अप्रैल 1 में बैलेंस ट्रांसफर किया। वही साल यानी कि इन दैट ईयर also purchase third machinery. Already I have given the problem. Already I told you on 1st July 2017 a new machine was also purchased ₹45,000. Okay? तो ये जो मशीन अभी परचेज किया है 45,000 का, तो जुलाई 1 को यहाँ पर सेम मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट हमने 45,000 क्या किया, पे किया है। तो इसलिए यहाँ लिखते समय में फॉर मशीनरी थर्ड अमाउंट इज 45,000। अभी डेप्रिसिएशन काउंट करते समय याद रखना है, यहाँ पर थर्ड मशीनरी जुलाई में लिया है। ओके, तो देखो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने मंथ्स होते हैं, 9 मंथ्स। ओके, सो दैट मीन्स थर्ड मशीनरी का डिप्रिसिएशन काउंट करते समय ओनली फॉर 9 मंथ्स का निकालना है। 45,000 इंटू 12% इंटू 9 मंथ्स, तो कितना हुआ 4,050 रुपीज। ओके, ये हो गया थर्ड मशीनरी का। अभी इन दैट टाइम क्या किया है, फर्स्ट मशीनरी को सोल्ड किया है। प्रॉब्लम में आपको देखा होगा तो कब सोल्ड किया है, अक्टूबर 1। जब सोल्ड किया है, सोल्ड करने से पहले उसका क्या करना है, अपने को डिप्रिसिएशन निकालना है। सीआर थर्ड ईयर डिप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड फॉर 6 मंथ्स ओनली, क्योंकि वो जो मशीनरी है उन्होंने कब सोल्ड किए हैं, 1 अक्टूबर 2017 को। तो सेम 90,000 12% 6 मंथ्स, सो कितना आ गया 5,400। 5,400 फर्स्ट मशीनरी का डिप्रिसिएशन निकाला। मशीनरी सोल्ड की है 70,000 को, तो यहाँ पर अपने पास कितना अमाउंट आया फर्स्ट मशीनरी का 70,000, लेकिन इसका लॉस हुआ है। ये लॉस कैसे निकाला है फाइंड आउट, मैं वर्किंग नोट में नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगी। सो इन दिस ईयर 2017 में सबसे पहले कौन सा एंट्री आएगा, बाय डिप्रिसिएशन। देन जो हमने मशीनरी को सोल्ड किया था तो 70,000 अपने पास आया है। लॉस हुआ है इसीलिए क्रेडिट में 1,100, अगर प्रॉफिट आता है तो डेबिट में एंट्री जाती है। ओके, एंड दिस ईयर 31 मार्च 2018 को उसका डिप्रिसिएशन भी फाइंड आउट करना है। तो अभी फर्स्ट मशीनरी का ऑलरेडी मैंने बताया, सेकेंड मशीनरी का अभी ये पूरा साल का आएगा 4,800 और थर्ड मशीनरी का 4,050, यानी कि ओनली फॉर 9 मंथ्स। तो ये टोटल डिप्रिसिएशन आया 8,850। ये कैसे निकाला है ये मैंने ये स्लाइड में बताया है, यू सी हियर। ओके, देन आफ्टर टोटल अमाउंट जो है 1,59,100 मशीनरी में से वो जो बैलेंस है वो माइनस करना है।
जितना भी डेप्रिसिएशन है वो माइनस करके जो बैलेंस आएगा वो है 73,750 and this balance is transferred to next year, that means 2018 April 1st. True balance brought down 73,750 यानी कि 16, 17, 18 31 मार्च 18 तक हमने क्या किया, उसका एंट्री किया, डेप्रिसिएशन निकाला और ये बैलेंस ट्रांसफर किया 2018 तक। समझ में आया? यस, ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड। आपको और ये बात समझ में जल्दी आ जाएगी कि व्हेन यू कैलकुलेट या व्हेन यू ड्रॉ द वर्किंग नोट। वर्किंग नोट पहले बताती फिर जर्नल एंट्री बताती मैं। सी ये कैलकुलेशन ऑफ डिप्रिसिएशन या प्रॉफिट एंड लॉस सेल ऑफ मशीनरी का जो मैंने अभी वर्किंग नोट दिखा रही हूँ, ये आप पहले ड्रॉ करेंगे सो यू कैन इजीली सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ डिप्रिसिएशन। ओके, सबसे पहले क्या करना है, मशीनरी फर्स्ट का मैंने ड्रॉ किया है यहाँ, वो सोल्ड किया था, ये सेकेंड कॉलम। थर्ड कॉलम में मशीनरी 2 लिए है, यहाँ पर अनसोल्ड है। जो सॉल्व किया है ये अगर यहाँ पर अनसोल्ड होता है तो यहाँ पर अनसोल्ड करके ये सोल्ड आ जाएगा। यहाँ मशीनरी 3 है वो भी अनसोल्ड है। ये सोल्ड जो किया है ओनली फर्स्ट मशीनरी है, दोनों सोल्ड नहीं किया है। एंड देन लास्ट वन टोटल डिप्रिसिएशन ये कॉलम में दिखाना है। सबसे पहले हमने 1 जनवरी 2016 को फर्स्ट मशीनरी परचेज किया था, ओके 90,000। उसके ऊपर 3 मंथ्स का डिप्रिसिएशन निकाला है, ओनली फॉर 3 मंथ्स 2700। तो ये डिप्रिसिएशन यहाँ पर जाएगा ओनली दैट ईयर, डिप्रिसिएशन ओनली 2700 था। ये हो गया फर्स्ट ईयर। सेकेंड ईयर 1 अप्रैल 2016 टू 31 मार्च 2017 तक क्या करना है, इसका हमने ये ईयर में पूरा यानी कि 12 मंथ्स का डिप्रिसिएशन निकाला 10,800। इन दैट टाइम आल्सो सेकेंड मशीनरी परचेज किया था 40,000 का, उसका डिप्रिसिएशन निकालते समय ओनली फॉर 6 मंथ का लेना है। और ये डिप्रिसिएशन जो यहाँ पर लिखते समय ये पूरा फर्स्ट मशीनरी 10,800 एंड सेकेंड मशीनरी का 2,400 6 मंथ का, तो टोटल डिप्रिसिएशन आया 13,200। ओके, अभी नेक्स्ट ईयर मीन्स 1 अप्रैल 2017 में हमने जो डिप्रिसिएशन लिया है यहाँ पर ओनली 6 मंथ का निकालना है, क्योंकि हमको ये मशीनरी हमने क्या किया था, सोल्ड किया है। 1 अक्टूबर 2007 को ये सोल्ड करते समय उसका जो सेलिंग प्राइस था 70,000, लेकिन अभी बैलेंस जो है 71,100 एक्चुअली प्राइस हो गया, अभी ये माइनस किया है 76,500, उसमें से डिप्रिसिएशन माइनस करके अमाउंट आई 71,100 और जो सेलिंग प्राइस है वो है 70,000। अगर ये मोर देन होता 70 की जगह 80,000 होता तो ये प्रॉफिट आ जाता था, लेकिन अमाउंट सेलिंग प्राइस इज द लेस देन द कॉस्ट प्राइस, तो 71,100 में से 70,000 माइनस किया तो लॉस कितना आया 1,100। ये लॉस कैसे निकाला समझ में आया, हाउ टू फाइंड आउट द लॉस। ओके, ये जो एक्चुअली प्राइस है उसमें से डिप्रिसिएशन माइनस किया, यहाँ पर फिर जो डिप्रिसिएशन वो लेस कर करके यहाँ पर जो एक्चुअली वैल्यू आया उसमें से सेलिंग प्राइस माइनस करना है। ये अभी फर्स्ट मशीनरी में है, कभी प्रॉब्लम में सेकेंड मशीनरी में भी हो सकता है या थर्ड मशीनरी में, ये आपको प्रॉब्लम में केयरफुली रीड करना है। यहाँ पर सेकेंड मशीनरी का हमने डिप्रिसिएशन निकाला है, ये इसको सोल्ड नहीं किया है इसलिए अनसोल्ड में इसका भी अपने को प्रॉफिट लॉस नहीं निकाला है, सिर्फ अपने डिप्रिसिएशन निकाला है। ओके, यहाँ पर पूरा साल का आएगा 12 महीने का 4,800। ओके, सो दैट मीन्स 32,800 एक्चुअली वैल्यू ऑफ द सेकेंड मशीनरी। थर्ड मशीनरी परचेज किया है 1 जुलाई को, तो 9 मंथ्स का आपने डिप्रिसिएशन निकाला एंड 1 अप्रैल 2018 में उसका जो बैलेंस है 40,950। तो अगर ये दोनों का बैलेंस अगर काउंट करेंगे 40,950 एंड 32,800, ये दोनों मिलके जो बैलेंस है जो हमने अभी लिखा है, ये देखो ये जो 73,750 बैलेंस आ जाता है। समझ में आया? ठीक है,
कैलकुलेट कैसे किया है, डेप्रिसिएशन समझ में आया? ठीक है, अभी आपको प्रॉब्लम में और एक बताया है हाफ पार्ट पास द जर्नल एंट्री, लेकिन एंट्री करते समय उन्होंने बताया था कि ओनली फॉर 2017 टू 2018 तक एंट्री करना है, मीन्स 1 ईयर का। तो 2017 में जो मशीनरी हमने परचेज की थी वो थर्ड मशीनरी आएगी, बराबर कि नहीं? सो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 45,000 का हमने मशीनरी परचेज किया था, न्यू मशीनरी परचेज किया है। यहाँ पर सेम हियर आल्सो द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इन द बुक्स ऑफ शुभांगी ट्रेडिंग कंपनी डोंबिवली, जर्नल एंट्रीज, डेट पर्टिकुलर, LF कॉलम, debit amount rupees, credit amount rupees. Okay, so this is the first journal entry. Second one, 1st अक्टूबर को उसका डेप्रिसिएशन निकाला है हमने, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी फर्स्ट 5,400, जो फर्स्ट मशीनरी जो ली थी उसका डेप्रिसिएशन आया। सेकेंड वन, जो फर्स्ट मशीनरी हमने सोल्ड आउट की थी 1st अक्टूबर को, तो एंट्री क्या हो जाएगा, 70,000 को मशीनरी सोल्ड किया था, सो बैंक अकाउंट डेबिट 70,000 अपने पास आया, डेबिट व्हाट कम्स इन, लॉस हुआ है, सो लॉस इज द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, सो डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, सो दैट मीन्स लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी अकाउंट डेबिट 1,100, ये कैसे निकाला मैंने ऑलरेडी अभी बताया है आपको, and to machinery first machinery account 71,100. नेक्स्ट वन 31 मार्च को डेप्रिसिएशन अपने को फाइंड आउट किया है, तो वो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 8,850, depreciation also the debit because of depreciation is the debit all the expenses and losses. Okay, depreciation is a loss, so that's why we are written in the debit side. Depreciation account 8,850, सेकेंड एंड थर्ड मशीन का depreciation हमने 31 मार्च 2018 को निकाला था 4,800 and 4,050. Okay, narration is must. Depreciation calculated 12% on both machines. And next one, these depreciation transfer to profit and loss account. Profit and loss account debit to depreciation account 8,850. Both the sides. Being balance of depreciation account transfer to profit and loss account. When you write the journal entries, total is also the importance. Marks for the totaling 1,39,200 both the sides. Okay. So entry करते समय ये याद रखना है, narration important है, totaling important है। ये कैलकुलेशन मैंने बताया था वर्किंग नोट का, आपको समझ में आया? So that means when you prepare या machinery account या depreciation account, so first you calculate this type, means working note is also the important. आपने अगर ये working note निकाला तो you can easily write the journal entry या machinery account. Okay, so all of you understood each and every point, how to calculate the depreciation. Okay, आपको प्रॉब्लम में कौन सा मेथड दिया है, फर्स्ट ये देखना है, सेकेंड वन ईयर देखना है, कितना ईयर का बनाना है, वर्किंग नोट इज ऑल्सो द इम्पोर्टेंट, दैट्स कंपल्सरी, देन यू प्रिपेयर द ड्रॉ द मशीनरी अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट या जर्नल एंट्री. यस, ओके, ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड. यू watch each and every slide, each and every points carefully. Okay, yes, okay, good. Bye, take care and all the best.